Hello everyone, this is Chair Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed first question of exercise 9.1, right? And in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start it. Draw a number line and represent the following rational numbers on it. Okay, so in this question you have given 4 rational numbers. You have to represent them on number line. Okay, so the first number which we have to represent here is 3/4. Okay, इस 3/4 जो कि क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसकी लोकेशन को शो करना है. ओके, सो सी, since this is a positive rational number, so it is very sure from here what it will lie to the right of 0. Okay, so if suppose we take this point as 0. Okay, so first we have to draw a straight line and have to take equal marks with the help of scale. Okay, suppose this mark is representing 0. If I take this mark as 0, okay, so to the right of 0 this number will lie, but where we will decide here. See, since the denominator is 4, okay, since the denominator is 4 and numerator is 3, means numerator is less than denominator, so this number will lie between 0 and 1. Okay, between 0 and 1. So see, suppose this mark is 1. Okay, so between 0 and 1 this number will lie. Okay, now see, since the denominator is 4, it means the gap between 0 and 1 we have to divide in 4 equal parts. So see, this is 1 part, 2 part, 3 part and 4 part. Okay, न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से छोटा है, ओके, स्मॉलर है, इसलिए ये नंबर क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. अब कहाँ पर लाई करेगा नंबर लाइन पर, वो कैसे डिसाइड करना है. देखिए, डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब 0 एंड 1 के बीच के गैप को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया. इसका मतलब ये जो फर्स्ट मार्क है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 आउट ऑफ 4. इफ यू टेक दिस पार्ट दैट इज 1/4, 1 out of 4. There are total 4 parts. So if you are taking 1 part means 1 out of 4. And if you take 2 parts, that means this will represent 2/4. Okay. If you take 3 part means this is 3/4. Okay. And if you take this means 4/4. And 4/4 is 1. Okay. Now, the rational number which we have to represent is 3/4, means this one. Okay, so 3/4 lies between 0 and 1. Okay, now see the second part, -5/8. This rational number is negative, so it will lie to the left of 0. If suppose this point is 0, means before 0 it will lie. Okay, since numerator is less than denominator, it means this number will lie between 0 and -1. Okay, 0 and -1. Okay, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका क्या है, 8 है. इसका मतलब 0 और -1 के बीच के गैप को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट यहाँ तक आ रहा है. इसका मतलब -1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा. ठीक है, जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स आपको ले लेने हैं, किसके बीच में, 0 एंड -1 के बीच में. ओके, अब देखिए, फर्स्ट मार्क विल रिप्रेजेंट -1/8, सेकेंड -2/8, थर्ड -3/8, फोर्थ -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 and the last one is -8/8 and -8/8 is -1. Okay, since we have to represent this number means this. Okay, so on the number line -5/8
is between 0 and -1 and at this position. ओके तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। अब जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स में आपको 0 to 1 या 0 to -1 के गैप को डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज -7/4। ओके, सो -7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये -7/4 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसलिए ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ओके, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 0, okay, so for number line just we have to draw a straight line and take marks at equal distance using scale like this. Okay, now see here the denominator is 4. It means every mark here will represent a rational number with denominator 4. See how. If this is 0, so we can write this 0 as 0/4. ओके, 0 है, अगर यहाँ पर 0 को अगर एक रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख सकते हैं 0/4. ओके, एंड बिफोर 0 द नेक्स्ट मार्क विल रिप्रेजेंट -1/4. सिमिलरली -2/4, -3/4, -4/4. Okay, and -4/4 is -1. Okay, similarly -5/4, -6/4, -7/4, and this one -8/4. Okay, we have to represent -7/4 means this number. Okay, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप नंबर लाइन पर मार्क रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे उनका डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 होगा। तो 0 को हम 0/4 लिख सकते हैं, तो 0 के बिफोर विद डिनोमिनेटर 4 क्या होगा, -1/4. सिमिलरली -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4. Okay, so like that. Now see the fourth part, 7/8. This is a positive rational number and here numerator is less than denominator, so it is sure this will lie between 0 and 1. Okay, so suppose if this point is 0, okay, since this will lie between 0 and 1, so we have to divide here the gap between 0 and 1. Suppose this mark is 1 in 8 equal parts. जितना डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स में हमें 0 और 1 के गैप को डिवाइड करना है. So suppose this is 1 part, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, तो हमने क्या किया, 0 एंड 1 के बीच के गैप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो देखिए अगर हम ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/8 एंड दिस वन 2/8, 3/8, 4/8 and 5/8, then 6/8, 7/8 and the last one 8/8 and 8/8 is 1. Okay, so we have to represent 7/8. So see 7/8 is lying here. Okay, 7/8 किसके, 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है, बट कहाँ लाई कर रहा है, before 1, 7/8. Now question number 5 is the points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equals to RS, RS equals to SU and AP is equals to PQ and PQ is equals to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये नंबर लाइन दे रखी है. ओके, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि US मीन्स ये इज इक्वल्स टू RS एंड RS इक्वल्स टू RT. सिमिलरली AP इज इक्वल्स टू PQ
एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। मीन्स यहाँ जो -1 और -2 के बीच का जो गैप है वो किसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स यू एस, एस आर एंड आर टी में। ठीक है, इसी तरीके से ए और बी, मीन्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3। सो ये 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। ठीक है, आपको क्या गिवन है, यू एस इज इक्वल्स टू आर एस दैट इज इक्वल्स टू आर टी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है, ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। ओके, तो आपको ये बताना है कि आर एस पी एंड क्यू आर रिप्रेजेंटिंग विच रैशनल नंबर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए कि ये जो नंबर लाइन दे रखी है वो किसके लिए, इंटीजर्स के लिए दे रखी है। ये रैशनल नंबर, ये नंबर लाइन रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो नंबर लाइन दे रखी है उस पर कौन से नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, ये सारे क्या हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, these all are integers, but we have to represent here p and q as rational numbers, similarly r and s as rational number. ओके, p and q किन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या r and s किन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या नोटिस करना है कि 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 3 क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 2 और 3, क्योंकि ये जो दो P एंड Q है वो क्या है, 2 और 3 के बीच के नंबर्स हैं, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 और 3 को हमें सबसे रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, मीन्स P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। सो एवरी इंटीजर यू कैन रिप्रेजेंट इन P अपॉन Q फॉर्म बाय टेकिंग डिनोमिनेटर एज 1। ओके, सो वी कैन राइट दिस 2 एज 2 अपॉन 1, सिमिलरली 3 अपॉन 1। ओके, इसका मतलब अगर यहाँ पर हम रैशनल नंबर लें तो A क्या रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 अपॉन 1। सिमिलरली बी रिप्रेजेंटिंग 3 अपॉन 1। ओके, अब इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के हमें ये दो रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिवीज़न है 2 और 3 के बीच का गैप वो 3 इक्वल पार्ट्स में है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 3 ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो। तो देखिए 2 अपॉन 1 को हम क्या 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 अपॉन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, हेयर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब देखिए इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के दो रैशनल नंबर क्या होंगे, 7 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन 3। यही दो, 6 के बाद क्या आएगा, 7 अपॉन 3, देन 8 अपॉन 3, देन दिस 9 अपॉन 3। इसका मतलब 2 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ए का अगर हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखें तो क्या आएगा, 6 अपॉन 3। इसी तरीके से बी का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 9 अपॉन 3। ठीक है, तो पीक पॉइंट क्या शो करेगा, 7 अपॉन 3। इसी तरीके से क्यू पॉइंट क्या शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 अपॉन 3। ओके, तो इस गैप के बीच में आपको देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उतना ही डिनोमिनेटर हमें इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को बनाना है। ठीक है, 2 अपॉन 1 थे, 3 अपॉन 1 थे, लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इनके डिनोमिनेटर को हमें इनका ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फ्रेम करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो। ठीक है, जब आपको रैशनल नंबर्स पता चल गए तो इनके दो आप निकाल सकते हैं, इनके बीच के दो। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -1 एंड -2 के बीच के गैप को यहाँ पर भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
इसका मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, विद डिनोमिनेटर 3। ओके, तो सबसे पहले -2 है और -1 है, तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1। इसी तरीके से -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर हो गए। अब लेकिन रैशनल नंबर हो गए, लेकिन अब हमें इनका ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर रखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो। इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी -1/, ठीक है। सो -2 × 3 इज -6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से -1 × 3 इज -3/3। ठीक है, तो ये जो -2 है, -2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, -6/3। इसी तरीके से -1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -3/3 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच के दो रैशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा, -4/3 एंड -5/3। ठीक है, तो इसका मतलब R पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -4/3 एंड S पॉइंट विल रिप्रेजेंट -5/3। ओके, जितने पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है 1 यूनिट का, उतने ही हमें डिनोमिनेटर उन रैशनल नंबर का होगा। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम है -1 एंड -2 है, उनके हमें ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो। P पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 7/3, Q पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 8/3 एंड S पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -5/3 एंड R पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -4/3। Now question number 6 is which of the following pairs represent the same rational number? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर्स के पेयर्स दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो सी द फर्स्ट पार्ट यू हैव गिवन -7/21 एंड 3/9। यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स के पेयर आपको दे रखे हैं। अब इन दोनों को आपको ये चेक करना है क्या ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है। -7/21 इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 एंड 21 में दोनों ही किसके, 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 and 21 are the multiples of 7. Both comes in the table of 7. So here we can divide by 7. Okay, so see, if you divide 7/21 by 7, so you'll get 7 1 ja means -1 and 7 3 ja. Okay, so the simplest form of this rational number is -1/3. Now check to this 3/9. 3 and 9 are the multiples of 3, so we can divide here by 3. So 3/9 means 3 is divided by 3. Similarly 9 is divided by 3. So 3 1 ja 3 and 3 3 ja 9. Okay, so the simplest form of this rational number is 1/3. Now check, are they equal? No, one is negative and another is positive. एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, बट साइन क्या है, ऑपोजिट है, सो दे आर नॉट इक्वल। -1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 मीन्स ये दोनों रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट, -16/20 एंड 20/-25। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप रिमूव कीजिए। तो देखिए 16 and 20 are the multiples of 4. Both comes in the table of 4. So we will divide here by 4. So -16 divided by 4 upon 20 divided by 4. So 4 4 ja 16 means -4 and 4 5 ja 20 -4/5. ओके, तो -16/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, -4/5। इसी तरीके से यहाँ पर 20 and 25 both are the multiples of 5, so we can divide here by 5. So 20/-25 divided by 5. See, 5 4 ja 20 and 5 5 ja 25 with minus sign. Okay, now see, both are the negative integer
but in this case the denominator is negative, so we can make this denominator as positive and numerator negative. How? By multiplying by -1 both sides. Okay, so 4 into -1 is -4 and -5 into -1 is +5. Okay, now see, the simplest form of these two rational number is same, means these are representing the same rational number. दोनों ही क्या है, एक ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है. नाउ सी द थर्ड पार्ट. हियर यू हैव गिवन द पेयर -2/3 एंड 2/3. ओके, दो रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं. अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे की इक्विवेलेंट हैं या नहीं. सी, -2/-3. अगर आप नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड करते तो आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है. मीन्स दिस माइनस साइन विल बी कैंसल आउट, सो यू आर लेफ्ट हेयर विद 2/3. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर. And here 2/3, there is no any common factor between 2 and 3, means this is already a simplest form. Okay, so 2/3. Now you can see both are equal. Both are equal, it means these two are representing the same rational number. Okay, दोनों का simplest form क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है. इसका मतलब दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, -3/5 एंड -12/20. सी, -3/5, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 5 एक्सेप्ट 1. 1 को छोड़कर 3 एंड 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ओके, सो -3/5 विल बी एज इट इज. अब इसको चेक करते हैं. यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 and 20. 12 and 20 are the multiples of 4, means we can divide this rational number by 4 in numerator as well as in denominator part. So -12 divided by 4 upon 20 divided by 4. See what we are getting, 4 3s are 12, means -3, and 4 5s are 20. See, the simplest form of -12/20 is -3/5, and you can see it's already in its standard, means simplest form. Okay, so that means these rational numbers representing the same rational number. Okay, ये दोनों rational number क्योंकि इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Okay, now see the fifth part, 8/-5 and -24/15. Okay, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए दोनों को ही उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो देखिए 8 and -5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज 8 and 5 आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर. ओके, सो दिस विल बी एज इट इज़. ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, -24/15. 15 and 24 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 5s are 15 and 3 8s are 24. Okay, so we will divide here by 3 to get its simplest form. So 3 8s are means -8 and 3 5s are. Okay, now compare these two. See, here the negative sign, numbers are same, numerators and denominators are same, only the change of sign. So we can change here. If we multiply by -1 in both numerator and denominator, so 8 into -1 will be -8 upon -5 into -1 is 5. Okay, so the simplest form of this is -8/5. Here also the simplest form of -24/15 is -8/5. So the simplest form of both rational number is same. That means what?
these are representing the same rational number, means minus 8 upon 5. ओके, माइनस 8 अपॉन 5 ऐसा रैशनल नंबर है जिसको ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम रैशनल नंबर. नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट, 1 upon 3. It is already in its simplest form. Okay, 1 upon 3. And here minus 1 upon 9. So there is no any common factor between 1 and 9 except 1. So it is already in its simplest form. So that means what? 1 upon 3 is not equals to minus 1 upon 9. ये दोनों ही क्या है? अनइक्वल है. इसका मतलब they are not representing the same rational number. Okay. Now see the seventh part. You have given here the rational numbers minus 5 upon minus 9 and 5 upon minus 9. Okay. So see here. Here numerator and denominator both are negative. So here minus sign will be cancelled out. So only 5 upon 9. Okay. If you divide a negative integer by negative integer, so you will get the answer in positive. So 5 upon 9 is the final answer. And here 5 upon minus 9. See, numerators are same but denominators are different. One is 9, second is minus 9. So these are not equal. These are not equal. That means they are not representing the same rational number. So here the answer will be no. These two are not representing the same rational number. Okay. So that's all about today's session, in which we have discussed question number 4 to question number 6. Okay, if you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next 4 questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.